अर्जुन, हाउ वाज द डे? कैसा था आज का दिन Yeah, the ट्रेडिंग day करते was समय? the day was going well. ओके, The last hour's up move, eroded my profits today, but ओके, had a neutral day. Even a minor या, profit in some of the accounts, but more of a neutral day today. यस। तो सब लोग अभी ब्रेकआउट बोल रहे थे, तो ये बहुत टाइम ले रहा है, खींच रहा है बहुत ब्रेकआउट के लिए। So usually around these levels, say at an all-time high or so, markets tend to consolidate क्योंकि लड़ाई चल रही है bull और bears में. राइट, Obviously, bulls have an upper hand, but because of the nature of this kind of a market, what happens is usually intraday में जैसे अगर fall आता भी है, there's a minor correction or a pullback. What tends to happen is towards the end of the day, markets go back up again because there is such buying pressure. So उस वजह राइट, से you are not able to get clean trends. Now, या, day traders either want the markets to remain sideways, or trend followers want them to go in one direction. At least एक direction में अच्छा trend आए. So वो is missing for a long time now. Let's see. Hopefully that resolves, and soon a big day comes, and we make big profits in intraday trend following at least. ट्रू, ट्रू। मे बी इट विल टेक सम टाइम। क्या होता है कि सब लोग एक्सपेक्ट करता है तो वो टाइम पे होता नहीं है वो ब्रेकआउट, और कोई नहीं एक्सपेक्ट करता है वो टाइम पे हो जाएगा वो। लाइक आपको टाइम भी नहीं देगा कि वो रैली पकड़ने के लिए। Certainly, it can go either ways also. मतलब what I believe is I don't like to predict the markets. Simple अपना जो भी system है, whatever you follow, say trend following or a delta neutral setup, just keep following that. And probably who knows कि upside की जगह downside पे एक breakdown आ जाए. So you never know what's going to happen. Just keep following your system, rinse, repeat और चलते रहने दो. Ultimately, it will come in your favor sooner or later. ट्रू, ट्रू, ट्रू। द सिस्टम ट्रेडिंग इज बेटर। मे बी थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होता है। देखो, सच बोलूं तो अगर कोई कहता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता ट्रेडिंग में, तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि जब आपकी पोजीशंस ओपन है तो आप पोजीशंस देखने भी वाले हो. जब पोजीशंस अगेंस्ट जाएंगी तो लगेगा भी कि यार स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, चाहे वो एल्गो से ही हो. But definitely one part, one advantage with algos is that orders खुद नहीं डालने पड़ते. So at least one headache is reduced, and by following a system, you know what parameters or what framework you have to trade inside. ठीक है. सो ये नहीं है कि सुबह आके मुझे सोचना है अच्छा यार गैप अप खुल गया, अब मैं क्या करूं. लग रहा है कि नीचे आ जाएगा, लग रहा है ऊपर जा जाएगा, तो वो जो लगने वाला काम है वो एटलीस्ट खत्म हो जाता है. So that is obviously a very big advantage with following systems. ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो मेरा केस पे वैसे होता है, आई एम नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर, आई एम ए पार्ट टाइम ट्रेडर। Hmm? बट व्हेन यू नो दैट दिस मच इज माय लॉस, आई एम रेडी टू टेक दैट लॉस, मींस एफर्ट टू लूज दैट मनी। देन उसमें क्या होता है कि वो स्ट्रेस वगैरह इतना नहीं रहता है। कभी-कभी मुझे पता भी नहीं रहता कि मेरा, मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा पोजीशन है बोल के। Hmm? सो बिकॉज़ algos आर रनिंग, एंड होपफुली एल्गो में कोई प्रॉब्लम आया ना, देन देयर मे बी ए प्रॉब्लम फॉर मी, और एल्स एक 315 को एक बार देखता हूँ कि यार क्लोज करना है, क्लोज हुआ है कि नहीं, Mm-hmm. एंड मॉर्निंग एक बार पोजीशन लिया है क्या प्रॉपर्ली। Right. या, So certainly सो that is a plus. And another good thing is that in the morning you know beforehand कि आज का मेरा expected loss कितना है, because your position size has been या, calculated in advance, and you get a basic idea. So that helps to keep your at least daily losses under check and even overall losses. So as per me, that is another advantage that systems have. But यस, ultimately, systems are as good as the person who is building them. ट्रू, So ट्रू, यस। सो आई थिंक हर्ष, कैन वी स्टार्ट द सेशन? Yeah, let's start. लेट्स स्टार्ट, राइट? Hello everyone, good evening. So Arjun Tandon is with us. Today's topic, right, deriving rental income using your portfolio. So Arjun will be explaining us about cash liquid put and covered calls and some more strategies. How can you get some rented income? So this is the concept and topic for the day. Arjun is a full-time trader, and he was like by profession he's a CA actually. He had a very good job, and he left his job just to like follow his passion. So now he's a full-time trader. Here in 2017 he left the job, and from last 4-5 years he's doing trading, full-time trading. So let's understand his journey. We'll get some inputs from his journey,
एंड मे बी मेनी पीपल आर थिंकिंग लाइक मुझे भी फुल टाइम ट्रेडर बनना है. सो हम लोग समझ लेंगे कि कैसा हम लोग फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है. तो बनने के लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा. लेट्स वेलकम अर्जुन टंडन. अर्जुन, welcome to the today's space F&O पे चर्चा. Thank you, Peter, for having me on the show, and a big thanks to everyone who has joined in and giving their valuable time to listen to us. Yeah, I'm with Manas. He is a product manager at Paytm Money. Me and Manas will throw some questions to Arjun. So Manas, welcome to the session. Yeah, thanks, Peter. Hi, Arjun. Welcome. Hi, Manas. Yeah. So Arjun, before going to the topic about like how to generate this rental income, I want to understand about your journey. Now, how did you start your trading journey? ये पूरा मीन्स आपको क्यों लगा कि ट्रेडर बनना है? ये जर्नी कैसा था? तो पीटर, मेरा मानना है कि हमारी जो शुरुआत है मार्केट में वो 3 चीज़ों से होती है. पहला है एक्साइटमेंट, जो किसी भी नई चीज़ से होती है. दूसरा है क्यूरियोसिटी, जिसे कहते हैं उत्सुकता, कुछ नया जानने और सीखने की. और तीसरा डिज़ायर, एक इच्छा पैसा कमाने की. तो ये 3 चीज़ें हैं जो किसी भी ट्रेडर की जो शुरुआत है वो इन 3 एलिमेंट से होती है. तो मेरा जो पहला एक्सपोजर है स्टॉक मार्केट का, वो एज अ स्कूल गोइंग किड हुआ 2006-7 में. मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मार्केट्स क्या हैं, बट किसी ने मेरे फादर को एक ट्रेडिंग टर्मिनल दिलवा दिया. एंड उन्होंने कहा, जी आप ट्रेडिंग करो, हम आपको टिप्स देंगे और चिंता मत करो, बहुत प्रॉफिट होगा. तो ये कोई नई चीज़ नहीं है टिप्स देना, ये बहुत सालों से, डिकेड से चली आ रही है. सो अब देखो, उसमें पैसे तो क्या कमाने हैं, आपको पता ही है एंड रिजल्ट क्या हुआ होगा, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा. बट बचपन में मैंने वो टिमटिमाती हुई स्क्रीन जरूर देखी है, वो जो शेयर्स की फ्लक्चुएशन होना उस टर्मिनल पे. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर एज अ किड. और इस फेज को मैं बोलूँगा, ये मेरा एक्साइटमेंट का फेज था कि यार मज़ा आ रहा है देखने में, ये चल क्या रहा है, प्राइसेस हिल रही हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. मैंने अपनी 12th के बाद आई began with my CA. So as a CA student, I was introduced to the subject of financial management, especially in my final year. So I was interested and wanted to know more about markets, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट पढ़ के बहुत मज़ा आया. So that is when my curiosity took off कि यार ये चीज़ है क्या, इसके बारे में और जानते हैं और समझते हैं. Then once I began with my CA articleship, and during the end of my articleship especially, थोड़ा पैसा भी आने लग गया. I was doing my articleship with KPMG, थोड़ा सा ही इन्फ्लो होने लग गया. So I started trading और दिखा यार ये तो अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की. यहाँ तो मतलब स्टार्टिंग में हर एक को ही लगता है, कैश स्टॉक से मैंने शुरू करा अपना, कि यार काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है, एक का दो भी हो जाएगा, स्टॉक्स बढ़ जाएंगे 20, 50, 40, 100%. So that is when this desire kicked in to make money. And when I finally completed my CA at around the age of 23, and I joined Price Waterhouse, during that tenure is when all these things clubbed, and I knew कि I had found my true passion, and my passion was markets. And I thought कि यार अब now I know the way forward, यही करना है आगे जाके लाइफ में. Okay. So like आप जब जॉब कर रहे थे तब आप like you were part time trader, like उस समय आप साथ में ट्रेडिंग करते थे. Then when did you think or you thought to leave the job and become a full time trader? ये like how did you make that decision? So, Manas, just going back a little, I've always had an entrepreneurial bent of mind. I started earning at the age of 14. I built some of my own Nice. tech blogs and stuff like that. So I used to receive paychecks from Google. I went to conferences. I was invited by Microsoft, Nokia. उस time बचपन में स्कूल में I got some handsets from Nokia to review and all that. So उसमें मुझे बड़ा मज़ा आने लगा. So entrepreneurship की मेरी जो जर्नी है वो वहाँ से शुरू हुई. तो अच्छा है उस टाइम पे मुझे किसी ने सिप वगैरह के बारे में नहीं बताया था, तो जो मैंने कमाया था वो मैं अपनी वीडियो गेम्स पे लगा देता था. बट एक पैशन अंदर आ गया था कि यार कुछ अपना ही करना है. And one thing which I feel is very very important is that whatever you're doing, you should be passionate about that. Otherwise उस काम को करने में मज़ा नहीं है, आप ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे. During my years when I was working,
सो दैट इज व्हेन आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार तेरा ट्रू पैशन है क्या, तेरे को करना क्या है आगे जाके लाइफ में, क्योंकि तब तक ये समझ आ गया था कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, एटलीस्ट इस काम के लिए नहीं बना हूँ जो मैं कर रहा था. सो आई फाउंड इट ड्यूरिंग माई जॉब इटसेल्फ, एंड वो ट्रेडिंग धीरे धीरे इतना चस्का बढ़ गया था कि मैं पूरा पूरा दिन उस पर लगाने लग गया था. पूरा दिन एज इन ऑब्वियसली जॉब होती थी, बट विद इन माई जॉब टाइमिंग्स, आउटसाइड माई जॉब टाइमिंग्स, आई वुड रीड अबाउट ऑप्शंस, आई वुड रीड अबाउट प्रोबेबिलिटीज एंड स्टफ. तो उसमें मज़ा आता था. मुझे याद है मैंने बहुत टेस्टी ट्रेड देखा है. आते जाते आई आई यूज टू ट्रैवल टू गुड़गांव, सो आना जाना 2-3 घंटे होता था. आई वुड लिसन टू टेस्टी ट्रेड. बहुत एपिसोड्स देखे हैं, 400-500 एपिसोड्स देख लिए होंगे. So, and another thing, I would go to the office and sit in the parking lot just so I could trade for say half an hour, क्योंकि पता था ऊपर जाके काम मिलेगा. So, ऐसे करते करते धीरे धीरे पैशन इतना बढ़ गया कि समझ आ गया कि यार यही है जो लाइफ में करना है, एंड आई एम ट्रूली इंटरेस्टेड इन दिस. दिस इज what I want to take forward in my career. राइट अर्जुन, यूजुअली क्या होता है कि सीएस आर गुड एट नंबर्स, राइट? तुम लोग तो नंबर में तो बहुत अच्छे रहता है, तो यू कैन रीड बैलेंस शीट बेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटर. तो आप फंडामेंटल एनालिस्ट क्यों नहीं बने? फंडामेंटल छोड़ के आप ट्रेडिंग करने के लिए शुरू किया आपने, यार देखो, ये कैसे? सो आप सही कह रहे हो. ये सीएस को भी ना गलतफहमी हो जाती है कि यार हमें तो सब आता है, क्योंकि बैलेंस शीट पढ़ ली है, फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मार्केट बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है. एंड यू नीड टू हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट टू मेक मनी इन द मार्केट्स. अदरवाइज इतना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता. सिंपल करना क्या, आज की डेट में तो स्क्रीनर पे जाके ही तो कुछ रेशोज निकालने हैं, हर कोई पैसे बना लेगा. सो उतना आसान नहीं है. एंड एज अ सीए मैंने भी ट्राई करा ऑब्वियसली फंडामेंटल्स वगैरह करना, बट जो एग्जैक्टली प्योर इन्वेस्टिंग है, द वे से इन्वेस्टर्स डू इट, फंड हाउसेस डू इट, उस तरीके से मेरा पेंट ऑफ माइंड उस तरफ नहीं गया. आई वॉज मोर इन टू ट्रेडिंग. वो ट्रेडिंग ही है जिसमें मुझे मज़ा आता था. सो आई नेवर वेंट टू दैट साइड, इवन दो माई फादर इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड वो आज की डेट में ही मुझे क्वेश्चन करते हैं कि यार तू ये चार्ट वार्ट देख के कैसे निकाल पाता है, क्या होता है, कुछ नहीं होते चार्ट. उनको दैट थॉट प्रोसेस इज स्टिल देयर कि बैलेंस शीट और ये जो सब चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स हैं, दे आर द ओनली true factors that drive the market. I agree to some part, yes, in the long term they do, but in the short term there are a lot of other stuff, a lot of other things that drive the market, and there are more ways to exploit that kind of move in the markets. So मेरा जो थोड़ा style है, that is different from conventional investing. ट्रू, मैंने बहुत सारे तरीका है, हर एक लोगों का. कई लोग फंडामेंटल जाता है, टेक्निकल, टेक्नो फंडो, और मेनी मेनी थिंग्स, राइट? So yeah, fundamental. It's not like a stock picking is just a science, right? It is a little bit of art also. So I say just take numbers में ही करना है तो I think every CA can be like बहुत अच्छे करते थे. It's kind of art also, right? Okay. Anyway, the my next question to you, like आपको लगा कि मुझे full time trader बनना है, तो ये जॉब छोड़ने से पहले आपका प्रिपरेशन कैसा था? ये मीन्स आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो मुझे इतना करना है, कमाना है, ये पर आपको एक करेज कहाँ से आया? See, I always knew the risk involved. No doubt इसमें मज़ा था, इसमें पैशन था, बट एक रिस्क तो ऑब्वियसली है ही है जो आप मार्केट्स में नेचुरली ले रहे हो जब आप एंटर करते हो. बट मेरा शुरू से ये रहा है कि यार लाइफ में एक बारी तो ट्राई करना चाहिए उस चीज़ के लिए जो आप दिल से चाहते हो करना. अदरवाइज ऐसा ना हो कि आज से 20 साल 30 साल बाद मैं सोचूं यार काश वो एक चांस ले लिया होता तो अच्छा रहता. So with that thought process in mind, I thought कि यार I am at a stage where I can take a risk in life, and आगे जाके obviously with age your packages go up, your salaries go up, it becomes more and more difficult to leave your job and to give up that pay and to start something afresh. So I was of the view कि कुछ करना है तो अभी करना है और ये मौका छोड़ना नहीं है. So I wanted to take this risk once and follow my instinct. तब तक इतना तो समझ आ गया था यार कि यही चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, सो इसके लिए एक बारी रिस्क लेना बनता है. सो आई वॉज कन्विंस्ड, एंड देन आई डिस्कस्ड इट विद माई फैमिली ऑल्सो. सो माई फादर इज अ सी ए, एंड ही हैज़ हिज ओन प्रैक्टिस. तो ऑब्वियसली मे बी ही थॉट कि यार ये सी ए करने के बाद ज्वाइन कर लेगा मेरे को. दैट इज़ नॉट समथिंग आई डिड.
एंड इवन ही वाज सरप्राइज कि यार ये कर क्या रहा है, ये तो एक टोटली डिफरेंट लाइन ले रहा है. On a lighter note, I am from a Punjabi family, and जब मैंने डैड को बताया तो मजाक में कहते यार कि लड़की वालों ने भी कहना है कि जी मुंडा तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਰੀ है, ਅਸੀਂ नहीं ਉਹਨੂੰ अपनी कुड़ी देनी. मीनिंग कि यार जब शादी के लिए जाएंगे तो उन्होंने कहना यार योर सन इज अ गैम्बलर, कि यहाँ हमने नहीं शादी करनी है. सो दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट. But obviously there was some concern behind that, and then concern is obviously a very valid one, that it is a risky profession. यहाँ पे कुछ आने की बजाय आपकी कैपिटल भी चले जाती है. So obviously they had that concern. Your family, your friends would have that concern for you कि यार my dear one is going into a very risky venture. But I was pretty clear in my head, and one of the main things that helped me was that I was done with my studies by then. और बीइंग अ सीए बहुत से दोस्त हैं, एज इन यंग फ्रेंड्स हु आर स्टिल डूइंग सीए. मुझे ट्विटर पे भी बहुत डीएम्स आते हैं, young guys who are still doing their CA, completing their articleships. They ask me कि सर हमें तो जॉब छोड़नी है, ट्रेडिंग में मज़ा आ रहा है, और जॉब क्या इंटर्नशिप छोड़नी है और सीए छोड़नी है और फुल टाइम इसमें आना है. So my advice to all these young guys is that यार please get done with your degree. Do not take this step इतना जल्दी कि यार बस अभी से मैं लग जाऊं. ये एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में आपका एज अ बैकअप काम आएगी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर डिग्री और अ प्रॉपर बैकअप, just so things don't work. And I'm not being negative about it. This is called risk management. ऐसा नहीं है कि यार अगर आप एक बैकअप रख रहे हो तो आप वो चीज़ कर नहीं सकते, या आपका फुल हार्टेड एफर्ट नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट यू हैव अ बैकअप, एंड इट हेल्प्स यू फील कंफर्टेबल इन योर हेड. सो हैव अ बैकअप लाइक दैट. हैव एडिक्वेट फाइनेंसेस. एडिक्वेट एज इन कि यार अगर ये नहीं चलता देन व्हाट. यू शुड हैव अ प्रॉपर बैकअप. बट वंस यू हैव दैट इन प्लेस तो अपना उसमें जी जान लगा दो चीज़ में, फिर पीछे मुड़ के मत देखो. बैकअप को बैकअप की जगह पड़े रहने दो. सो माई फैमिली अग्रीड. काफ़ी डिस्कशन के बाद दे थॉट कि यार यू नो ही इज एडमेंट एंड ही विल डू व्हाट ही वांट्स टू डू. And in the end, I was the happiest, and thus began my full-time trading career in 2017. ओके, बट या ट्रेडिंग करियर स्टार्ट हो गया आपका, तो शादी हुआ कि नहीं अभी? ये शादी भी हो गया पिछले साल. ओके, गुड. या So मेरा ये क्वेश्चन है लाइक कि आप जैसे बोले कि अब बैकअप होना चाहिए एंड कि थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए रिस्क कैपिटल या accumulated कैपिटल के पर्सपेक्टिव में. सो आई वांटेड टू आस्क लाइक कि आप जब छोड़े अपना जॉब, देन हाउ मच टाइम you took to earn the profit that's equal to your last salary? Like See, in the first month itself, I Okay. made a profit equivalent to my monthly salary in the very first month itself. But जो दूसरा महीना था वो more than double of my salary ले गया. तो ये एक रियलिटी है जो आपको हिट करती है when you get into trading full time. It is not so easy. चाहे आप जितने मर्जी प्लान्स बना लो, लाइफ गुगली फेंकेगी, मार्केट्स गुगली फेंकेंगी, and your plans will go haywire. So this is something that is going to happen, no doubt how prepared you are. But what happened is that by God's grace, मेरा drawdown कभी इतना नहीं हुआ कि I blew up my account. So that is a plus thing that happened. Over in the coming years, when I quit my job, I was like a little above break even. I did not earn as much as my salary, but I knew it is going to happen. Because obviously when you get into trading, आप एक प्रेशर के साथ भी आ रहे हो. किसी महीने लॉस लगेगा तो यार पहले तो सैलरी की आदत पड़ी हुई है, हर महीने एंड में वो आनी है. यहाँ पे नहीं आएगी, खुद निकालनी है मार्केट से. सो इट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम टू गेट एडजस्टेड टू दैट काइंड ऑफ अ वर्क एनवायरनमेंट. और ये वर्क एनवायरनमेंट सिर्फ आपका अपना है, ठीक है. And once you get used to it, once you get used to the process of having losses and profits in a month, that is when the journey starts becoming a little smooth. But initially it is a little tough, and it takes time getting used to. सर अर्जुन, आप ये फुल टाइम करियर स्टार्ट करने से पहले भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे, राइट? Absolutely, I was a profitable trader. ओके, वो टाइम पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे. सो ओके, आपने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया, पहले मंथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, बट सेकंड मंथ यू लॉस्ट डबल ऑफ योर लास्ट रॉन सैलरी.
So this is the reality for every person who wants to become a full time trader. जॉब करना इतना इजी नहीं है कि ट्रेडिंग इज ए वेरी स्ट्रेसफुल जॉब एंड वन ऑफ द टफेस्ट जॉब भी बोल सकता है. सो अर्जुन, आपको कभी भी ऐसा लगा कि यार ये पूरा छोड़ो, ये ट्रेडिंग वगैरह इतना पूरा मेहनत करना, स्टॉप ट्रेडिंग, लेट्स गो बैक टू द जॉब बोल के, ऐसा कभी लगा आपको बीच में? देखो, मैं या कोई भी झूठ बोलेगा अगर वो ये कह रहा है कि उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ऐसा तो नहीं कि दिस विल नॉट वर्क फॉर मी, या ऐसा तो नहीं कि मैं कर नहीं पाऊंगा. देयर आर टाइम्स, और ये एक दिस इज अ बिजनेस वेंचर ओनली, ठीक है. आई ट्रीट इट लाइक वन, एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर. सो एवरी एंटरप्रेन्योर हैज दैट फेज वेयर ही फील्स दैट व्हाट इफ आई फेल, ठीक है. बट यू हैव टू गेट ओवर दिस व्हाट इफ बाय योर हार्ड वर्क, एंड टेल योरसेल्फ व्हाई यू गॉट इनटू दिस इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैंने ये अपनी जो जर्नी शुरू करी है करी क्यों, मैं आया क्यों हूँ इसमें. एंड वंस यू रियलाइज दैट, वंस यू अंडरस्टैंड कि जो मैंने किया छोड़ा है जिसके लिए, उसको मैं करके रहूंगा, देन देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. टेम्पररी सेटबैक्स लगते रहेंगे लाइफ में, किस किस फील्ड में नहीं लगते, वो लगते रहेंगे. बट कीप गोइंग, मेहनत करते रहो. अल्टीमेटली यू विल फाइंड योर वे, एंड यू विल फाइंड द टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी दैट विल सूट योर पर्सनैलिटी स्टाइल. द मेन थिंग इज आपको एक ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढना पड़ता है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करे. बना बनाया ट्रेडिंग स्टाइल कहीं नहीं आता, आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा. जितनी मर्जी दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर लो, नहीं कर पाओगे. 3 महीने स्ट्रैटेजी चलाओगे, चौथा महीना लॉस वाला आएगा, छोड़ दोगे उसको. क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपके मेंटल थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं करती है. सो इट टेक्स टाइम टू फिगर आउट व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, and very often it is what kind of a trading style is working for you. So that can only be explored, and you only get to know that जब आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो. बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं आएगा. और एक्सपेरिमेंट में जैसे स्कूल कॉलेज में फीस देते हो, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा फीस देनी पड़ती है, और वो फीस लॉसेस की फॉर्म में होती है. सो कुछ नया ट्राई करने की फीस तो हमेशा होगी, और कभी कभी लॉस भी लगेगा. तो डोंट वरी, ट्रीट इट लाइक अ फीस. बट कभी भी ये मत करना कि यार फीस इतनी ज़्यादा दे दी कि मेरे पास कुछ बचे ना. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स टू कीप इन माइंड, कि अपनी जो फीस है जो मार्केट को दे रहे हो, कीप दैट टू बेयर मिनिमम. एंड यू नो, फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग अप, आई वुड लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस, कि एज आई सेड, बाय गॉड्स ग्रेस, have never blown up my account, have gotten temporary setbacks, but ऐसा कभी नहीं हुआ कि जी सब कुछ उड़ा दिया. But during my early days, I met a lot of people who said कि यार एक रियल ट्रेडर तो वही होता है जिसने अपना अकाउंट ब्लो अप किया हुआ है. जिसने नहीं किया हुआ ना, तो वो तो मतलब अभी असली ट्रेडर नहीं है, उसने देखा नहीं है. तो यार ये सुन के मैंने कहा मैं करूँ क्या, मेरा आने वाले टाइम में अकाउंट उड़ेगा क्या, तभी सीखूंगा. सो दिस यूज टू स्केयर मी इनिशियली, कि अभी तो मतलब मेरी ट्रेडिंग कुछ हुई नहीं है शुरू, अभी कमा भी रहा हूँ तो ये जाने वाला है. क्यों? क्योंकि असली ट्रेडर तो तभी बनते हो जब उड़ा देते हो अकाउंट. बट धीरे धीरे समझ आया कि यार क्यों उड़ाना है, ज़बरदस्ती थोड़ी है. मतलब अपनी रिस्क मैनेजमेंट आप धीरे धीरे सीख के कंट्रोल में रखो तो अकाउंट क्यों उड़ेगा. हाँ, अगर जुआ खेल रहे हो तो अकाउंट उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा, सूनर और लेटर उड़ना ही उड़ना है वो. लेकिन अगर यू आर गोइंग विद अ प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच, विच आई फॉर्मुलेटेड ओवर द इयर्स, प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है, तो ये नहीं होने वाला. देन आई मेट अनदर बैच ऑफ पीपल. ये लोग थे जो कहते थे यार जिसने 2008 नहीं देखा वो ट्रेडर नहीं है, वो प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता. मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार ये 2008 भी दोबारा आएगा, तो जब आएगा क्या मैं ट्रेडर उसके बाद बन पाऊंगा? तब सब उड़ जाएगा. तो ये एक ऑर्डर रहता था. बट देन केम 2020, and March 20 was one of the most profitable months for me. I had not experienced 2008, and markets will always surprise you with new things, but you can always learn from your experiences and from the experiences of others. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये होगा तभी ये होगा. इग्नोर द naysayers. बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों की हर बात को इग्नोर करो और बोलो कि यार मुझे तो सब पता है. बट व्हाट आई मीन टू से इज डोंट बिकम सो पेसिमिस्टिक कि आप ट्रेड ही ना ले पाओ. अपनी और दूसरों की गलतियों से जरूर सीखो, एंड जस्ट कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ. Okay, wonderfully said. Like that point that you said that key strategy should be like aligned to the trader's personality. You should find your strategy against your trading or risk or reward interests. Okay, so coming to today's topic regarding deriving rental income using your portfolio.
So, like, can we start and discuss about some strategies in which, like, we can treat our portfolio for giving us some rental income, like, for example, cash secured puts or covered calls. You can start with one of the strategies and explain like how it works, what goes So about. सिंपली पुट पहले तो मैं बोलता हूँ कि पुट से लोग बहुत डरते हैं, बट आई वुड से दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स. सो कमिंग टू द टॉपिक, CSP है क्या? CSP मीनिंग कैश सिक्योर्ड पुट. अब एक स्टॉक को खरीदने के दो तरीके हैं. या तो आप आउटराइट उसको खरीद लो, मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उस पर आप खरीदो और बैठ जाओ. ₹1 नीचे जाएगा तो लॉस होगा, ₹1 ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा. एज सिंपल इज दैट. दूसरा तरीका है कि आप अपने लेवल पे आने का वेट करो. ठीक है, आ गया तो गुड, नहीं तो आपकी कैपिटल पे आप कुछ नहीं कमाई करोगे. ठीक है, यहाँ एंटर होता है CSP. अब CSP क्या है? सेकंड वाला केस लेते हैं. कहते हैं कि जो रिलायंस है, रिलायंस फॉर एग्जांपल चल रहा है आज की डेट पे 2600 पे. ठीक है, आप कहते हो नहीं यार ये तो महंगा है, 2600 पे नहीं मैंने लेना, मैं लूंगा 2500 के ऊपर. अब अगर तो आपका स्टॉक जो है रिलायंस वो यहीं से बढ़ गया तो आप बोलोगे यार मैंने तो गलती कर दी, मैं तो बैठा रह गया और वो मेरे लेवल पे ही नहीं आया और ऊपर ही जाता जा रहा है. दूसरा है कि आप 2500 पे एक पुट सेल कर देते हो. अब देखो आपने पैसे तो ऑलरेडी रखे हुए थे रिलायंस के लिए. ठीक है, यू वर विलिंग टू बाय इट आउटराइट. अभी हम लॉट्स की बात करते हैं, एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं. सो रिलायंस का लॉट साइज है से 250 और 250 2600 तो करीबन 6 लाख रुपए का लॉट अगर लें. ठीक है, तो 6 लाख रुपए आपके पास पड़े थे, आपने 6 लाख को अकाउंट में ही रखे रखा, आप 2500 का वेट करते रहे, वो आया नहीं और ऊपर चला गया. एक दूसरे बंदे ने क्या किया, 2500 पे एक पुट सेल कर दी. अब उसने कौन सी पुट सेल करी? से सपोज उसका प्रीमियम 50 रुपए था. ठीक है, तो 2% उसके पास प्रीमियम आ गया, 50 रुपए 2500 पे. अब अगर तो वो स्टॉक भागता गया तो शायद दर्द उसको भी हो. क्यों? क्योंकि वो बोलेगा यार मैं तो खरीदने को बैठा था, ये तो ऊपर भाग गया. लेकिन उसको थोड़ी सी संतुष्टि इस बात से मिल जाएगी कि मेरे को 2% तो आया. ठीक है, जो पुट सेल करी थी एटलीस्ट आप उसका प्रीमियम तो अर्न कर लोगे. नाउ से इफ द स्टॉक फॉल्स, अगर स्टॉक 2500 तक भी आता है या से ब्रेक इवन जो बैठता है 2450, अगर वहां तक भी आता है तो भी यू विल नॉट मेक अ लॉस ऑन योर पोजिशन. ठीक है, बट ऑन दी अदर एंड अगर आपने स्टॉक खरीद लिया था 2600 पे तो आपको यहाँ पे 150 रुपए या 100 रुपए जैसे भी है उस उतना लॉस हो जाएगा. दिस इज वेयर योर CSP कम्स इन हैंडी. आप पुट एक ऐसे लेवल पे सेल करते हो जहां पे आप डिलीवरी उठाने को तैयार हो. सो दैट लेवल कैन बी बेस्ड ऑन एनीथिंग. दैट कैन बी अ फंडामेंटल लेवल जहां पे आपको वो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही है. दैट कैन बी अ टेक्निकल लेवल लाइक अ सपोर्ट जहां पे आप कहते हो यहाँ पे मैं लेने को तैयार हूँ, बाउंस विल कम. इट कैन बी एनीथिंग, but it has to be a level where you are willing to purchase that stock. Now what happens is ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको हमने नाम दिया हुआ है द बुफे मॉडल. अब आई डोंट नो वेदर वॉरेन बुफे जी डज इट और नॉट, बट आई एज्यूम ही डज. इट्स जस्ट दैट इन माय हेड बुफे एंड इन्वेस्टिंग गो हैंड इन हैंड, सो आई कॉल इट द बुफे मॉडल. नाउ लेट्स डिवाइड दिस इनटू थ्री स्टेजेस. ठीक है, विद द फर्स्ट स्टेज आप CSP से शुरुआत करते हो, कैश सिक्योर्ड पुट आप बेचते हो. नाउ कैश सिक्योर्ड पुट एज द नेम इम्प्लाइज मींस आपके पास कैश पड़ा हुआ है और कैश से सिक्योर करा हुआ है आपने पुट को. अब आपने अगर पुट बेच दी और आपके पास पैसे पड़े हुए हैं स्टॉक उठाने के, तो आपको डर किस बात का है? कल को मार्केट में लोअर सर्किट लगे, गैप डाउन खोले, जो मर्जी हो, आपके पास तो पैसे हैं, आप कहते हो यार कोई बात नहीं मैं उठा लूंगा डिलीवरी. ठीक है, और आपके पास पूरी डिलीवरी लेने को है कैपिटल. ठीक है, नाउ वंस द स्टॉक गोज डाउन, से रिलायंस 2600 से आपका 2450 पे आ गया. ठीक है, अब आपने 2500 पे पुट सेल करी थी 50 रुपए की, तो 50 तो आपकी जेब में आ गए, मतलब उसके नीचे 50 रुपए तक आपको कोई नुकसान नहीं है. सो 2450 आपका जो ब्रेक इवन बना. अब रिलायंस अगर 2400 पे आया तो आपने वहां पे डिलीवरी ले ली उसकी स्टॉक की. नाउ वंस यू हैव दैट डिलीवरी, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया. ठीक है, अब जैसे ही पोर्टफोलियो में ऐड हुआ, आई कॉल दिस स्टेप 2, पोर्टफोलियो में ऐड करना. देन कम्स स्टेप 3. अब हम कहते हैं कि यार ये चीज जब मेरे पोर्टफोलियो में आ गई है, नाउ आई वांट टू मोनेटाइज दिस. ठीक है, हाउ डू यू मोनेटाइज इट? यू मोनेटाइज इट बाय टर्निंग इट इनटू अ कवर्ड कॉल. अब कवर्ड कॉल क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, ये एक कॉल है जो कवर्ड है. कवर्ड किससे है? आपके पोर्टफोलियो से. अब रिलायंस मैंने 2450 में उठाया,
मैंने कहा यार ऊपर 2700 पे ना, मेरे को लग रहा है इससे ऊपर नहीं जाएगा 2700 पे, और 2700 तक जाता भी है तो मोटा मोटा मेरा 10% तो बन जाएगा, ठीक है। 2700 पे आप एक कॉल सेल करते हो, से सपोज 2700 की कॉल बिकती है 15 रुपए की, दूर की बेच रहे हो तो थोड़े कम में बिकेगी। अब 15 रुपए कितना हुआ, से आधा परसेंट के करीब हो गया। अब रिलायंस अगर तो नीचे आता है तो आपकी होल्डिंग पे तो एम टू एम लॉस वैसे भी होना था, ठीक है। रिलायंस वहीं रहता है तो भी आपकी होल्डिंग पे कुछ गेन नहीं आना था। रिलायंस 2700 तक आता है तो भी आपके 2450 से 2700 250 रुपए आने थे, ठीक है। कॉल क्या रोल प्ले करेगा, कॉल ये रोल प्ले करेगा कि आपको वो एक रेंटल इनकम दे देगा, जो 15 रुपए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो आपकी जेब में आने हैं। रिलायंस नीचे चला जाए तो 15 रुपए मिल जाएंगे, रिलायंस वहीं रह जाए तो 15 मिल जाएंगे, 2700 तक आ जाए तो आपको 15 मिल जाएंगे, यानी कि आधा परसेंट आपकी जेब में आ रहा है। नाउ आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, इसका नुकसान ही क्या है। दी ओनली डिसएडवांटेज इज दैट आपने एक सीलिंग क्रिएट कर दी है। अब स्टॉक अगर ऊपर भाग रहा है तो आप कह रहे हो 2700 प्लस दैट 15 रुपीज, 2715 जो मेरा ब्रेक इवन है अपसाइड पे, मैं वहां पे अपनी डिलीवरी दे दूंगा। मतलब मैं वहां पे एक तरीके से ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। 2715 पे आप स्टॉक को अपने एग्जिट करोगे एंड यू विल बुक योर प्रॉफिट। सो दैट इज हाउ अ सीएसपी वर्क्स। बहुत बारी ऐसे होता है दैट ड्यूरिंग द मंथ द स्टॉक विल ब्रीच योर अपसाइड, आपकी कॉल प्राइस से ऊपर 2700 से क्या 2800 चले जाएगा वो। लेकिन आपको चिंता की बात क्या है, क्योंकि आपके पास 250 क्वांटिटी लॉन्ग है, ठीक है, और 250 ही आपने, यानी कि एक लॉट आपने कॉल का भी शॉर्ट किया हुआ है, तो अपसाइड पे तो पूरा हेज्ड है, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। नाउ बहुत बारी ऐसा होगा कि वो 2800 गया और महीने के एंड पे वो नीचे आके 2650 पे बंद हो गया। द बेस्ट पार्ट इज इसमें शांति से अपना ट्रेड डालो एंड सिट टाइट, द मार्केट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। डिलीवरी जानी होगी चली जाएगी, अदरवाइज नीचे आ जाएगा तो वेल एंड गुड, घूम फिर के आपके पास प्रॉफिट आपका कॉल का आ जाएगा। अगर वो चीज़ से 2650 पे बंद होता है, 15 रुपए जेब में आए, अगले महीने और ऊपर चले जाओ 2800 पे बेच दो। So that is how we keep shifting our strikes and try and take in some premium, थोड़ा बहुत प्रॉफिट एवरी महीने जो मेरे को रियलाइज होता रहे, बिकॉज होल्डिंग्स रियलाइज तब तक नहीं होती जब तक आप उनको सेल नहीं करते। नाउ दिस इज द 3 स्टेज प्रोसेस एंड यू नो ये स्टेजेस ऐसे हैं कि अगर आप एक सर्कल इमेजिन करो, ये एक सर्कल में चल रहा है जिसकी शुरुआत एक कैश सिक्योर्ड पुट से हुई है, उसके बाद आपके पास डिलीवरी आई है, and उसके बाद आपकी जो कवर्ड कॉल है उस पर डिलीवरी गई है, घूम के हम वापस सीएसपी पे आते हैं। अगर आपकी 2700 पे डिलीवरी चली जाती, 2750 मान लेते हैं, एंड आप कहते हो यार मैं रिलायंस दोबारा लेने को तैयार हूँ लेकिन नीचे लूंगा 2600 पे, आप 2600 पे दोबारा पुट सेल कर सकते हो एंड यू कैन earn some amount on that again. So that is how the whole process of CSP works, and I internally call it the buffet model. यस अर्जुन, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कैश सिक्योर्ड पुट एंड कवर्ड कॉल, बट एक एडवांटेज साइड एंड डिसएडवांटेज भी आपने थोड़ा बहुत बताया, द फ्लिप साइड। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि देख लिया मैंने अभी पुट सेल किया, मान लीजिए कोई एक स्टॉक का, एंड मैं सोच रहा हूँ कि वहां तक आएगा, तो मुझे फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस में दे दिया कि 2500 में चल रहा है, 2500 का पुट सेल किया, कुछ तो मुझे मिल रहा है। नहीं आया, ऊपर गया तो चलो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया, बट एक 2% मैंने कमाया। नीचे आया तो मैं वो लेवल पे लेता हूँ, नहीं तो उससे भी नीचे आया तो मैं आई एम रेडी टू बाय। बट देयर इज वन प्रॉब्लम, द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक चेंज, देन ये प्रॉब्लम होगा, राइट? फॉर एग्जांपल डीएचएफएल है, नहीं तो एस बैंक है, ऐसे वाला स्टॉक मीन स्टॉक पिकिंग आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्टॉक पिक किया मे बी 350 लेवल पे, यस बैंक भी बहुत अच्छा ही था, बट आपने पुट सेल किया, बट ओवरनाइट ऐसा फंडामेंटल चेंज हो गया स्टॉक का फॉर एनी रीजन, देन देर में बी वेरी डिफिकल्ट, आपको तो ले भी नहीं सकते, आपको तो लॉस बुक करना ही पड़ेगा। इट्स पीटर ट्रू, देखो, राइट? ये प्रॉब्लम तो आपको एनी विच में आनी आनी है, बिकॉज यू आर गोइंग इनटू इन्वेस्टिंग। तो अगर आप आउटराइट 350 पे खरीदते हो तो भी आपको ये दिक्कत आएगी, ठीक है। एंड अगर आप वाया कैश सिक्योर्ड पुट से 330 पे खरीदते हो तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो फंडामेंटल तो आपका पहला स्क्रीनर होने ही वाला है। एंड एज विद बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, टेकिंग इवन ट्रेडिंग बेट्स लाइक स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, दैट डिसाइड्स द फेट ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो
फंडामेंटल्स जो चेंज होते हैं मतलब ओवरनाइट जो होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अ न्यूज, ठीक है। सो जब आपने पोजीशन ली थी, एट दैट पॉइंट व्हाट वाज योर व्यू? आपका व्यू था कि ये स्टॉक में सब कुछ सही है, मैं हर चीज देख चुका हूँ। अब उस टाइम पे अगर आप डिलीवरी वैसे भी खरीद लेते हैं, एक लॉट फ्यूचर का ले लेते या पुट बेचते, उसमें कोई फर्क नहीं था। बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स व्यू चेंज नहीं होने वाला था, थोड़ा लेवल का चेंज हो गया, बिकॉज विद सीएसपी यू आर विलिंग टू बाय एट अ लोअर लेवल देन द मार्केट प्राइस। सो दैट इज द ओनली थिंग। बट से अगर ओवरनाइट कुछ न्यूज भी आती है and in the morning you feel nahi yaar, something has changed in this stock and I don't want to be a holder of this particular script anymore, तो आप उसको exit कर सकते हो। like your deliveries जहाँ पे आप अपना equity निकाल दोगे, अपना future निकाल दोगे, यहाँ पे भी आप simply put को square off कर दो। so that is how it works, and it is very similar to how you would act when you have a outright purchase of the holding. राइट, ट्रू। सो दोनों साइड पे इस पे तो देखा तो थोड़ा सा पुट में थोड़ा सा कम भी लॉस हो सकता है, बिकॉज Yes, यू हैव yes. गॉट प्रीमियम आल्सो, You दैट have मे बी, certain cushion and a premium. बट एग्जिटिंग इन द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, या। Yes. तो बट कॉल साइड पे आपने बोला है कि अभी कवर्ड कॉल करेंगे, आपने अभी ले लिया फॉर एक स्टॉक, एंड आपने एक 10% और 5% ऊपर वाला कॉल को आपने शॉर्ट किया है, बट बहुत बड़ा मूवमेंट आया स्टॉक के ऊपर, देन ऑब्वियसली लाइक देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया, राइट? मुझे तो बहुत छोटा अमाउंट मिला, क्योंकि क्या प्रॉफिट हो रहा है वो तो कॉल पे लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहे थे लास्ट कई महीनों पे, अभी थोड़ा सा साइडवेज पे है। सो ये केस पे क्या आपका थॉट है? See, ऐसे आपके साथ होने वाला है when there will be times जहाँ पे एक स्टॉक रॉकेट की तरह भागे जा रहा है। Obviously, in stocks जहाँ पे इस टाइप के मूव्स आते हैं, like your Adanis, Adanis में premiums are also very high. So probably you can say, अगर मैं आधे % प्रीमियम की बात करूँ, तो आपका अदानी में से 20% दूर भी आपको 15% दूर भी वो प्रीमियम मिल जाएगा। So naturally, in volatile scripts, your buffer is also more on the upside. But as you rightly pointed, there are times जब वो उस बफर को भी क्रॉस करके, उस स्ट्राइक को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा। Yes, as I pointed out in the beginning, ये एक रिस्क आप स्टार्टिंग में ही ले रहे हो कि यार अगर ये स्टॉक भागता चला गया तो आई माइट बी इन अ पोजिशन जहाँ पे मुझे अपनी डिलीवरी देनी पड़े। अब आप कहते हो मुझे डिलीवरी नहीं देनी, तो देर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन डू। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस की बात करूं मैं, हम लोग 2700 पे कॉल सेल करी हुई थी हमने। अब अगर स्टॉक ऊपर आने आ गया है और ठीक है, आप कहते हो यार नहीं मेरे को होल्डिंग नहीं देनी है, तो वन ऑप्शन इज कि आप अपनी कॉल को एग्जिट करके, जितना आपने प्रीमियम एग्जिट कराया है, से सपोज आपने 15 रुपए की चीज आपकी 50 हो गई, सो वन ऑप्शन इज यू अगेन सेल अ प्रीमियम वर्थ 50 रुपीज। वो हो सकता है आपका एट द मनी हो सकता है इन द मनी भी हो, थोड़ा सा उससे जरूर बफर बढ़ जाएगा आप साइड पे, बट अगर नीचे आ गया तो यू विल अगेन रियलाइज दैट 50 रुपीज। ठीक है। दी अदर ऑप्शन इज कि जब स्टॉक आपकी स्ट्राइक के पास आ रहा है, देन यू रोल इट अप। बेसिकली आप अपनी 2700 की कॉल, जब स्टॉक 2650 पे आया, तो उसको आप ऊपर मूव कर दो। तो देन इफ आपने उसको मूव 2750 तक कर दिया, आपको थोड़ा बफर एक्स्ट्रा मिल जाता है। नो, यू वोंट मेक अ प्रॉफिट ऑन दैट कॉल, प्रॉब्ली अ स्मॉल लॉस या ब्रेक इवन होगा, बट आपकी एक रेंज बढ़ जाएगी। Okay. So, अभी ऐसे हमने cash secured put and we discussed about covered call. So, like, are there any other strategies to earn like such fixed small returns, like as we are selling options here, apart from cash secured put or Yeah. covered call? See, since you are building strategies around your portfolio, the main thing is to keep your leverage low. अब बहुत से लोग हैं जो पोर्टफोलियो सिर्फ 1x पे बना रहे हैं, गुड इनफ। पोर्टफोलियोज ट्रेडिशनली वैसे ही बनते आए हैं। कोई और है जो बोल रहा है मैं थोड़ा फ्यूचर्स में काम कर रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग लेवरेज से 1.5x पे जा रहा हूँ मैं। आप बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पे कर सकते हो। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल हाउ यू कैन यूज स्ट्रैडल्स विद योर पोर्टफोलियो। से आप कहते हो कि मुझे रिलायंस में ही आई वांट टू परचेज 2 लॉट्स, ठीक है। वन यू परचेज आउटराइट, आपने 2500 पे से 2600 हमने एग्जांपल में लिया था, 2600 पे आपने एक फ्यूचर लिया रिलायंस का, एंड आपने देखा स्ट्रैडल कितने का है। स्ट्रैडल था 200 रुपए का, ठीक है। आपने एक स्ट्रैडल उसके ऊपर सेल कर दिया। अब अगर आप देखो आपकी अपसाइड हेज्ड है बिकॉज यू आर लॉन्ग ऑन अ फ्यूचर, ठीक है।
तो आपका अपसाइड का ब्रेक इवन है 2800 रुपये, तो मतलब 200 रुपये आप फ्यूचर के ऊपर अपने कमाओगे, एंड पोस्ट दैट 200 रुपीज आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा, एज इन कोई उस पर प्रॉफिट और नहीं बढ़ेगा। एंड ऑन द डाउन साइड आप कहते हो यार मैं तो एक लॉट लेने को तैयार था, तो आपने जो 200 रुपये का स्ट्रैडल बेचा है, आप मानो कि 200 रुपये नीचे 2600 2400 रुपये पे आपको एक लॉट की और डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, सो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 2600 2400 मिला के 2500 बन जाएगी। So this is one example where you can deploy a straddle over a future to take delivery या to give delivery, either of the two. आप ready हो ये करने को, and अगर वो sideways रह गया तो any which way you make money on the straddle. So it is like a win-win in a case where you want to add more delivery. On the other hand, you can also deploy a strangle, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि since you are selling a put also, आप 50 रुपए की पुट सेल कर रहे हो, एंड व्हाट आई यूजुअली डू इज से मैंने 10 रुपए की एक कॉल भी सेल कर दी। अब नीचे आने में तो मुझे चिंता ही नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूँ। आई हैव द कैश विद मी कि मैं स्टॉक उठा लूंगा। अपसाइड पे यस देयर इज अ लिटिल रिस्क, बट यू कैन मैनेज इट लाइक अ स्ट्रैंगल, कि डाउन साइड पे आई कैन टेक डिलीवरी, बट अपसाइड पे सिंस यू आर कीपिंग द कॉल वेरी फार अवे एंड द डेल्टाज आर स्मॉलर कंपेयर टू द पुट, सो दैट इज अनदर वे यू कैन यूज इट टू कॉम्प्लीमेंट योर पोर्टफोलियो। बहुत सी चीज़ें आप और भी कर सकते हो, लाइक यू कैन क्रिएट पुट रेशो, जिसमें आप एक पुट बाय करके 2 सेल कर रहे हो। तो आपका व्यू कैन बी कि यार ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा, बट अगर बहुत नीचे आ गया तो मैं से डिलीवरी ले लूंगा क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पुट है। सो वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट जहां पे आप डिलीवरी लेने को तैयार हो और आपने कैश रखा हुआ है, आपके एक तरीके से हाथ खुल जाते हैं। ट्रेडिंग में नहीं खुलेंगे। ट्रेडिंग में जब आप बेचोगे, आप मार्जिन टू मार्जिन काम कर रहे हो, कैसे खुल जाएंगे हाथ? स्टॉक गैप डाउन मारेगा, आप बोलोगे नहीं यार काटो इसको या मैनेज करो इसको। ऑन दी अदर हैंड, जब आपके पास एक ऐसा माइंडसेट होगा कि अगर नीचे भी आ जाए कोई बात नहीं, इस स्टॉक को मैं उठा के रखने को तैयार हूं, दैट इज व्हेन आपका असली जो है हाथ खुल जाता है पुट साइड पे, एंड यू कैन ट्रेड वेरी कंफर्टेबली विदाउट द रिस्क ऑफ हैविंग गैप डाउन्स। यस अर्जुन। सो ये कॉन्सेप्ट के साथ किसी को करना है तो द मिनिमम दैट अमाउंट शुड बी देयर, राइट? एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू दैट इज लाइक 8 लाख रुपीस और 10 लाख रुपीस फॉर रिलायंस, करेक्ट। and he सो can sell only one call. If he has a full contract, then he should sell only one call, right? Not more than that. आइडियली यस, यू शुड बी सेलिंग वन कॉल, बिकॉज जब आपने एक और कॉल ओपन कर दी है, देन वन ऑफ दोज कॉल्स इज अनहेज्ड, एंड अपसाइड पे आपका रिस्क है। नो डाउट आप बोलोगे यार मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल गया, डाउन साइड पे भी तो मेरा ब्रेक इवन बढ़ता है। जी जरूर बढ़ेगा, बट जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपका अपसाइड पे भी रिस्क है। नो डाउट आपको फ्यूचर थोड़ी देर तक बचाएगा, but after a while it will start giving up to the extra call. So initially I would say don't do that, but if you are a comfortable, if you are an experienced options trader, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत टाइम से कर रहे हो और मैनेजमेंट इज समथिंग जो आपको आती है, देन व्हाई नॉट, यू कैन डू दैट। मार्केट में द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस इज दैट आप जितना मर्जी अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। यू कैन स्ट्रक्चर योर ट्रेड्स जैसे भी आप चाहो, बट माई एडवाइस वुड बी कि आप बस अपना लेवरेज को कंट्रोल में रखो। जहां लेवरेज कंट्रोल में हो गया वहां पे सब चीजें ओके हो जाती हैं। True. एंड So आई विल ऑल्सो टच बेस ऑन अनदर थिंग, विच इज कि अगर आप लेवरेज कर रहे हो, यू कैन डू दैट, बट सिंस दिस इज योर पोर्टफोलियो, what I feel is don't leverage too much, or if you're leveraging, probably please hedge that so that आपको unnecessary stress ना हो in case it gaps down, and आपका drawdown as a percentage of capital ज़्यादा ना बढ़े। yes, Arjun, we are like running out of time also. So if there is any audience question, Manas, we can ask those questions to Arjun. Yeah, so one question has been asked from the audience, that what has been your non-leveraged annualized return and max drawdown? This has been Okay, asked so by one जो of our audience. max drawdown रहा है, that was in 2020, बट एज आई सेड कि वहीं से ही मेरे को लेवरेज की इंपॉर्टेंस पता लगी, क्योंकि आई हैड टेकन लॉन्ग डेटेड निफ्टी पुट्स बैक देन। 12,000 की पुट्स थी, मेरे को नहीं पता था ये होने वाला है, नाइदर डिड आई बाय देम सीइंग द कोविड न्यूज़, कुछ नहीं।
just hedged a part of my portfolio, seeing this. So the drawdown at that point of time was, I think, around 20%. Since it was a major fall, I think 20% was still bearable. Okay tha us time pe. So that has been the max drawdown. And talking about returns, uh, the past 1 year. So what I work on is around a 2x leverage, and that part of 2x is completely hedged. I don't leave any of that unhedged, and most of my hedging is via Nifty long dated puts. So I have a certain comfort in my head कि यार अगर बहुत ज़्यादा मेरे against जाती है market, at least I have my exposure hedged. And if I ever go above that, so all my positions are via spreads, so that my risk is capped. सारी risk defined strategies होती हैं. The returns this year, they have been 50% plus on this portfolio. Specifically अगर मैं बोलूँ तो 60% भी क्रॉस कर चुका है. So that has been the kind of return, but obviously it depends on script selection. Maybe I got lucky with the kind of scripts I took. So it is no guarantee for the kind of returns you can make. But yes, what I shared is an instrument which you can add to your arsenal. एक शस्त्र है जिसको आप use कर सकते हो to make your trading more effective and powerful. Yes, Arjun. Arjun, so many young people like they wants to become a trader. आजकल ट्विटर में बहुत सारे सब लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालता है, बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, सबको लगता है कि मुझे भी कमाना है, मुझे भी ट्रेडर बनना है. Many young people also like to become a full time trader. रिसेंटली एक बार मुझे ऐसा भी हुआ था कि एक बंदा ने मुझे पूछा कि यार आई वांट टू बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर, मुझे ट्रेडर बनना है, क्या करना चाहिए. मैंने पूछा क्यों आपको ट्रेडर क्यों बनना है. देन ही सेड लाइक मेरा सैलरी बहुत कम है. अरे तो ये तो रीजन हो सकता है क्या, सैलरी कम है इसलिए मैं ट्रेडर बन सकता हूँ. यार एंड तो आप आज एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको बहुत अच्छा सैलरी होने के बाद भी आपने जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बने. एंड एक बिजनेस जैसा आपने एक माइंडसेट के साथ इसको स्टार्ट किया. सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस एंड व्हाट इज योर फाइनल एडवाइस फॉर आवर ऑडियंस हु वांट्स I टू बिकम ए फुल टाइम I ट्रेडर. did not have a very fancy salary. ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा कमा रहा था, बट आई हैड अ डिसेंट जॉब. एंड फॉर समवन जो कह रहा है कि मेरी इनकम लो है इसलिए मैं करना चाहता हूँ या सैलरी बढ़ाने के लिए, तो माय थॉट या माय एडवाइस इज कि मोर ऑफन देन नॉट आप वो भी सैलरी वापस कर दोगे मार्केट को. क्यों? क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे हो कि यार मुझे अपनी सैलरी या मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, और मार्केट आप ट्रेडिंग ऐसे नहीं कर सकते इस काइंड ऑफ प्रेशर के साथ. यू नीड सम फ्रीडम इन योर हेड कि यार कोई चिंता नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हेन यू आर एबल टू ट्रेड फ्रीली. सो आई वुड से कि डोंट गो इन विद द आइडिया कि मैं अपनी सैलरी को कॉम्प्लीमेंट कर दूं इससे. दैट इज पॉसिबल, मैं नहीं बोलूंगा पॉसिबल ही नहीं है. देयर आर पीपल हु बीन एबल टू डू इट, बट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ये चीज काम नहीं करने वाली है. सो रादर माई थॉट प्रोसेस वुड बी या माई एडवाइस वुड बी कि यार आप एक पैसा ना अलग कर दो. आप बोलो वट एवर अमाउंट इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता वो 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है. आप उसको एक अलग अकाउंट में डाल दो और पहले तो खुद को बोलो कि क्या ये जीरो हो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा धक्का तो नहीं लगेगा. अगर आंसर है येस तो उसको आधा करो, 25,000 पे आ जाओ. 25,000 पे भी लगता है नहीं यार मेरी तो हालत खराब हो जाएगी अगर ये उड़ गया तो आप ट्रेडिंग अभी नहीं कर सकते हो. प्लीज वेट. आई वुड सजेस्ट प्लीज वेट, accumulate some more capital and come in when you are willing and you are okay to lose at least 50% of that. मैं नहीं बोल रहा जान के गवाओ. आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग योर माइंडसेट कि तभी ट्रेडिंग करना जब ये सोच के करो कि अगर ये मेरा पैसा अभी स्टार्टिंग फेज में, बाद में योर कैपिटल ग्रोज ऑब्वियसली यू कांट अफोर्ड टू लूज इट. स्टार्टिंग फेज में आप ये सोच के करो कि क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, एक एक फीस देनी है मेरे को मार्केट को, तो यार बहुत ज्यादा फीस तो नहीं होगी. एंड वंस यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद दिस माइंडसेट, ऑब्वियसली अपना रिस्क मैनेजमेंट तो आपको अंडर चेक रखना ही है, बट विद दिस माइंडसेट तो आपकी ट्रेडिंग बहुत फ्रीली और एक फ्लूइड तरीके से होगी. Yes, Arjun, it was very wonderful session and very insightful session. Thank you very much for joining us and discussing on the rental income using your portfolio and explaining about covered call and cash liquid puts and also the straddle and strangle. How can we हम लोग पोर्टफोलियो के ऊपर straddle and strangle करके कैसा हम लोग ये rental income
कर सकता है। इसके साथ आपका जर्नी भी आपने बताया बहुत अच्छे से। आई थिंक नया ट्रेडर्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए था, और नया यंग स्टार के लिए किसको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट, My अर्जुन। my my pleasure, Peter. It was a pleasure being on this Twitter space, and thank you to everyone who joined. My one final advice, which just came to my mind, especially for new people, इसकी यार अपने एक एक जो चीज़ आपको मार्केट में तोड़ती है वो लॉसेस है. सो ऑलवेज कीप योर रिस्क मैनेज एंड योर लॉसेस अंडर कंट्रोल. स्टार्टिंग में मैंने तीन चीज़ें बोली थी कि एक तो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और डिजायर, इन तीन चीज़ों से हम मार्केट में आते हैं. तो जो आपके बड़े लॉसेस हैं वो आपकी एक्साइटमेंट को किल करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी कम होने लगती है, और आपका जो डिजायर है, ऑब्वियसली जब बड़े लॉसेस हो रहे हैं तो प्रॉफिट होने का डिजायर जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है. सो प्लीज कीप योर लॉसेस अंडर कंट्रोल, और बाकी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. और ये जो तीन चीजें हैं ये आपकी ट्रेडिंग में हमेशा रहनी चाहिए. आज भी मैं जब सुबह जाता हूँ, आई एम एक्साइटेड, आई एम क्यूरियस टू लर्न मोर, एंड आई हैव अ डिजायर टू अर्न मोर. So always keep these three things in mind and you are all set. Thank you so much, Peter, for having me. Yeah, thank you very much. And Thank thanks you, to everyone. Manas also. Yeah. Yeah. Thank you, Manas, for joining us, and thank you all the lovely audience. Thanks for joining us. Thank you. Thanks, Arjun. Thanks, Peter. Thanks, Have a thanks wonderful everyone for weekend. joining. Thank you. Thank you, everyone. Have a great weekend. Thank you.